नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं देवांग सर आर्यन क्लास में से एक बार फिर इकोनॉमिक्स का वीडियो लेक्चर लेके आ रहा हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 5, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। In this chapter we have to explain basic concept of production cost, then explain fixed cost, variable cost and total cost, then explain average fixed cost and average variable cost, then explain interrelation between average cost and marginal cost, then explain average revenue, marginal revenue and total revenue, explain these all revenues in perfect competition and explain all the revenues in imperfect competition. So these kind of answers been taught by me in this chapter. बराबर, ये वीडियो लेक्चर में हम इनिशियली जो आंसर्स है उसको पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू. ओके, ओके. अब आपकी स्क्रीन पे एक जेन्युइन आंसर दिखेगा. एक्सप्लेन बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट. नंबर 1 रियल कॉस्ट, नंबर 2 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड नंबर 3 मॉनेटरी कॉस्ट. These 3 type of cost are the basic concept of production cost. Generally we have to consider monetary cost. ये तीनों में से हम monetary cost को consider करेंगे और आगे production cost के बारे में ये चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. लेकिन रियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हमको ध्यान में लेना पड़ता है. वी हैव टू अंडरस्टैंड रियल कॉस्ट, opportunity cost and monetary cost. बराबर. So there are 3 type of basic concept of production cost: real cost, opportunity cost and monetary cost. Okay, now number 1 real cost. According to Professor Marshall, the laborers, capitalists and entrepreneurs who are involved in the process of production bear psychological and physical burden. Such burden is called real cost. I again repeat, according to Professor Alfred Marshall, the laborers, capitalists and entrepreneurs who are involved in the process of production bear psychological and physical burden. Such burden is called real cost. The concept of real cost was given by classical economists. They had presented this concept in context of main factor of production, land and labor. But in modern time, this concept is considered in context of capitalist and entrepreneur also. रियल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज नॉन मॉनेटरी कॉस्ट. बराबर. समझने वाली बात यह है, पूरे वर्ल्ड में 2 टाइप के इकोनॉमिस्ट हैं. बराबर. एक होते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, दूसरे होते हैं मॉडर्न इकोनॉमिस्ट. बराबर. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट 20th सेंचुरी के पहले के हैं और आफ्टर 20th सेंचुरी वाले मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं. जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो लैंड एंड लेबर जैसे प्रोडक्शन फैक्टर को ध्यान में रख के रियल कॉस्ट का कंसेप्ट रिप्रेजेंट करते हैं. और मॉडर्न जो इकोनॉमिस्ट है वो कैपिटलिस्ट और एंटरप्रेन्योर जैसे बराबर प्रोडक्शन फैक्टर को ध्यान में रख के ये रियल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. ध्यान रखना, रियल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज नॉन मॉनेटरी कॉस्ट. Okay, now problems in measuring real cost. 3 points are there. First, real cost includes fatigue, boredom, pain, sacrifice and anxiety. The goods which have psychological impact are difficult to measure. Second,
Moreover, the smoke emitted by factories created adverse effect on health of the people of surrounding area. Third, the adverse effect is also a cost in social view and therefore it cannot be measured. So here there are three points suggest as the problems in measuring real cost. तीनों पॉइंट का एक ही कंक्लूजन है, रियल कॉस्ट को मेज़र नहीं किया जा सकता. कोई भी कॉस्ट होती है उसको मेज़र करने का एक तरीका होता है. कोई भी कॉस्ट आप मेज़र करते हो इन टर्म्स ऑफ मनी करते हो आप, लेकिन रियल कॉस्ट ये कोई भी तरीके से मेज़र नहीं हो पाता है. दैट्स वाई वी कैन से रियल कॉस्ट इज़ नॉन मॉनेटरी कॉस्ट. बराबर, इसको मेज़र नहीं किया जा सकता. तो ये हुआ रियल कॉस्ट के बारे में. बराबर, अब आगे. नाउ नंबर 2, opportunity cost. Let us start. This concept of opportunity cost was presented by Austrian economist. See, Austria is one of the country in Europe continent. The Austrians are from Austria. Okay, this concept of opportunity cost was presented by Austrian economist, but it was properly presented by Alfred Marshall. The means of this cost is production factor have alternative uses. There are 4 types of production factor having alternative uses. If the factor of production is used in the production of one commodity, so the next best alternative is left out. The cost of unborn or unproduced commodity is the opportunity cost of production. बराबर, एकदम इजी है. जब भी आपको कोई प्रोडक्शन करना है तो आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं. आप जो भी ऑल्टरनेटिव चूज करते हो उसके सामने आपने जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव जाने दिया वही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बराबर, तो इस तरीके से समझ में आना चाहिए कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रेजेंटेड बाय ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट, बट इट वाज प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड बाय मार्शल. द मीन्स ऑफ दिस कॉस्ट इज प्रोडक्शन फैक्टर हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. बराबर. नाउ meaning of opportunity cost. Whenever person selected best alternative out of certain alternatives, he or she lose the satisfaction from other alternatives. This type of cost is defined as opportunity cost. I again repeat, whenever person selected best alternative out of certain alternative, he or she lose the satisfaction from other alternative. This type of cost is defined as opportunity cost. For example, a farmer has an option to produce either wheat or rice. From production of wheat, farmer earn income of rupees 5 lakh, and from rice, farmer earn income of rupees 3 lakh. So, farmer selected production of wheat instead of rice. That is called opportunity cost. Example एकदम perfect दिया हुआ है. एज अ फार्मर आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर यू शुड प्रोड्यूस व्हीट और राइस. अगर आप व्हीट प्रोड्यूस करते हो तो आपको 5 लाख रुपीज़ का इनकम होता है, और आप राइस प्रोड्यूस करते हो तो आपको 3 लाख रुपीज़ का इनकम होता है. ऑब्वियस है आप व्हीट का प्रोडक्शन चूज करोगे और राइस का बराबर छोड़ दोगे. तो राइस का प्रोडक्शन छोड़ दिया, बराबर, तो वो हुआ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. द बेस्ट ऑल्टरनेटिव विल बी लेफ्ट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बराबर, तो ये कंसेप्ट हुआ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का. बराबर. नाउ प्रॉब्लम्स इन मेजरिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. देयर विल बी 2 points आर देयर. फर्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स विथ one use it. See,
If any factor of production has only one use, then its opportunity cost cannot be decided. For example, some piece of land is only used to produce grass. So far as that piece of land, opportunity cost cannot be calculated. It will be applied for unemployed person also. कहने का मीनिंग ये है, कोई भी फैक्टर है उसका सिर्फ वन टाइप ऑफ यूज है, सिंगल टाइप ऑफ यूज है, तो वो फैक्टर के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बराबर इंप्लीमेंट नहीं होता है। ये हमको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पीस ऑफ लैंड है, वहाँ पे सिर्फ ग्रास प्रोड्यूस होता है, ग्रास के अलावा कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, तो फिर ये क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, ये मेजर नहीं हो सकता है, या फिर वो पीस ऑफ लैंड के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेजर नहीं हो सकता है। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, सेकेंड प्रॉब्लम इन मेजरिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, factor having specific use. C. If factors of production are specific factor, then this concept is not useful. Returns of these factors are not decided by their alternative uses, but it is decided on the basis of their demand. For example, persons having expertise over computers, साइंटिस्ट हैविंग नॉलेज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो फैक्टर्स हैविंग स्पेसिफिक यूज, कोई भी फैक्टर का कोई स्पेसिफिक यूज होता है बराबर, तो फिर वो फैक्टर के लिए भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम मेजर नहीं कर सकते। कंप्यूटर का एक्सपर्ट पर्सन होता है, वो आइदर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, ये दोनों में से कोई भी एक की जानकारी रखता है। साइंटिस्ट होते हैं जो एटॉमिक एनर्जी के लिए काम करते हैं, एटॉमिक पावर के लिए काम करते हैं, तो एटॉमिक पावर में से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उसके लिए अलग साइंटिस्ट होते हैं, और एटॉमिक पावर में से जो एटम बम बनते हैं तो वो बनाने के लिए अलग साइंटिस्ट होते हैं। तो जो भी पर्सन होता है या फिर जो भी फैक्टर होता है जिसके पास स्पेसिफिक नॉलेज या स्पेशलाइज नॉलेज होता है, इसमें हम डॉक्टर्स का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेजर नहीं होता है या फिर इम्प्लीमेंट नहीं होता है बराबर। तो ये हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डिटेल थोड़ी शॉर्ट नोट जैसी भी दिखती है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम आगे जाएंगे थर्ड नंबर के कॉस्ट के लिए पढ़ने के लिए, मॉनेटरी कॉस्ट। ओके, ओके, थर्ड पॉइंट, financial cost or monetary cost. C. Concept of monetary cost is useful in economic analysis. Decisions related to production and in price determination, because real cost and opportunity cost have many limitations. Cost of production is calculated in terms of money, therefore concept of monetary कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट बराबर। फिर इसका एक मीनिंग है, देखिए, वेन एवर एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स पर कमोडिटी, देन सच काइंड ऑफ कॉस्ट इंक्रीज और अराइज, दिस इज डिफाइंड एज मॉनेटरी कॉस्ट बराबर। कोई भी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी आप रिप्रेजेंट करते हो तो वो होता है मॉनेटरी कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट्स वाई प्रोडक्शन कॉस्ट इज बीन अ मॉनेटरी कॉस्ट। एग्जाम्पल दिखेगा आपको, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी इज नोन एज मॉनेटरी कॉस्ट इफ अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग पेन्स इंक्योर द कॉस्ट ऑफ ₹50,000 to produce 1000 unit of pens, so the monetary cost to produce 1000 unit of pen is ₹50,000। यानी कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आप जो कॉस्ट या फिर एक्सपेंस करते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो होता है मॉनेटरी कॉस्ट। इसका दूसरा नाम है फाइनेंशियल कॉस्ट बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ 3 टाइप ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट किए, रियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मॉनेटरी कॉस्ट बराबर। अब आगे सी स्टूडेंट्स, अब प्रोडक्शन कॉस्ट को आगे पढ़ने के लिए एक क्लासिफिकेशन हमको देखना पड़ेगा जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है।
देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। टाइम बीइंग पीरियड के हिसाब से देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉस्ट. In short run production cost, there will be two types of cost, fixed cost and variable cost. If you divide by production cost, fixed cost is divided by production cost, then such a cost being called average fixed cost. And variable cost is divided by production unit, then such a cost being called average variable cost. बराबर, ये एक क्लासिफिकेशन है. एंड इन लॉन्ग रन ऑल कॉस्ट बिकम वेरिएबल. समझने वाली बात यह है कि फिक्स्ड कॉस्ट को आप प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करोगे तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिलेगा, वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करोगे प्रोडक्शन यूनिट से तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये दोनों का एडिशन करोगे तो आपको एवरेज कॉस्ट मिलेगा. एवरेज कॉस्ट में लास्ट यूनिट का जो भी कॉस्ट होता है तो वो मार्जिनल कॉस्ट होता है. तो इस तरीके से हम टाइप्स ऑफ कॉस्ट और उसका क्लासिफिकेशन अब आगे पढ़ेंगे. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑन योर स्क्रीन अ न्यू genuine answer, total fixed cost. Now we are going to study about different kind of cost. Okay, so see, production level will be increase, decrease or zero, but production cost remaining same, so it is called as fixed cost. Whatever fluctuation in the production cost remaining same, that is called as fixed cost. Fixed cost is also known as overhead cost. For example, rent of land or warehouse, interest of capital, salary of permanent worker, insurance premium, etc. तो समझिए, production level will be increase, decrease or remain zero, but production cost remaining same. यानी प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या ज़ीरो रहता है, लेकिन ये कॉस्ट रिमेनिंग सेम यानी कॉस्ट सेम रहती है, तो वो है फिक्स्ड कॉस्ट. यानी ये डिटेल से पता चल रहा है देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड फिक्स्ड कॉस्ट. प्रोडक्शन हो के ना हो बराबर ये कॉस्ट होता है देखने को मिलता है. एग्जाम्पल भी प्रॉपर है, रेंट ऑफ लैंड और वेयर हाउस, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, सैलरी ऑफ परमानेंट वर्कर, इंश्योरेंस प्रीमियम. प्रोडक्शन होता है कि नहीं होता है, ये एक्सपेंस या फिर ये कॉस्ट देखने को मिलता है. ठीक है. नाउ शेड्यूल एंड डायग्राम. एक शेड्यूल आएगा स्क्रीन पे देखिए बराबर. प्रोडक्शन यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इनटू रुपीज़ दिया हुआ है. प्रोडक्शन यूनिट 0, 10, 20, 30, 40, 50 बराबर. और ये सेम प्रपोर्शन में आप देखिए फिक्स्ड कॉस्ट रिमेनिंग सेम एट एवरी टाइम 100. वाट एवर प्रोडक्शन यूनिट विल बी 0 और गोइंग टू बी इंक्रीज और डिक्रीज, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेनिंग 0, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट रिमेनिंग सेम एज 100 रुपीज़ बराबर. तो ये शेड्यूल है. फिक्स्ड कॉस्ट को प्रॉपरली समझने के लिए ये शेड्यूल हम देखेंगे कि भाई आप देख रहे हो कि भाई प्रोडक्शन यूनिट 0 है बराबर, तो भी 100 रुपीज़ का फिक्स्ड कॉस्ट है. प्रोडक्शन जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है तो भी फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, रिमेनिंग सेम. तो ये हमको एक प्रूवमेंट मिलता है बराबर. तो ये शेड्यूल. अब जो शेड्यूल हमने देखा उस पर से एक डायग्राम आएगा. डायग्राम में आप देख रहे हो देयर विल बी प्रोडक्शन यूनिट ऑन एक्स एक्सिस एंड देयर विल बी फिक्स्ड कॉस्ट ऑन वाई एक्सिस. A line similar to x-axis is called total fixed cost curve. A B C D E F पॉइंट दिखेंगे आपको, उसको जॉइंट करके एक लाइन या कर्व ड्रॉ किया गया है विच इज़ सिमिलर टू एक्स एक्सिस एंड दोज कर्व इज़ कॉल्ड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बराबर. आप देख सकते हो कि भाई 0 प्रोडक्शन यूनिट तो
₹100 का कॉस्ट ए पॉइंट सजेस्ट कर रहा है, बी पॉइंट सजेस्ट कर रहा है 10 प्रोडक्शन यूनिट ₹100 कॉस्ट, सी पॉइंट सजेस्ट कर रहा है 20 प्रोडक्शन यूनिट ₹100 कॉस्ट, डी पॉइंट सजेस्ट कर रहा है 30 प्रोडक्शन यूनिट ₹100 कॉस्ट, ई पॉइंट सजेस्ट कर रहा है 40 प्रोडक्शन यूनिट ₹100 कॉस्ट एंड एफ पॉइंट सजेस्ट कर रहा है 50 प्रोडक्शन यूनिट ₹100 कॉस्ट। तो इस तरीके से पूरा हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हुआ शेड्यूल एंड डायग्राम, जिस पर से हमको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में प्रॉपर पता चल रहा है, बराबर। नाउ एनालिसिस ऑफ डायग्राम। सी, एज पर अबो डायग्राम, production unit noted on x-axis and fixed cost is noted on y-axis. A line noted TFC is similar to x-axis is fixed cost line or total fixed cost line. TFC line suggests that however production is increase or decrease, the fixed cost is not increase or decrease but remains same. And production is zero, then fixed cost also remains same. That's why the TFC curve is similar to x-axis. बराबर, एनालिसिस भी यही बता रहा है कि a line is similar to x-axis suggests us that whatever the fluctuation or whatever the increase decrease in production unit or production remains zero, the cost remains same. That means fixed cost remain same. तो ये पूरी स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में है, पूरा एक शॉर्ट नोट के जैसा हो गया, बराबर। कि पहले आप उसका मीनिंग लिखिए, बराबर। मीनिंग लिखने के बाद वो कौन से नाम से जाना जाता है, देन एग्जाम्पल, देन शेड्यूल डायग्राम एनालिसिस। तो इस तरीके से पूरा आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं फॉर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, बराबर। Let's move forward. Now, another concept of cost in short run, variable cost. See, first meaning, whatever fluctuation arises in production, same type of fluctuation arises in cost. Means, if the production will increase, cost will increase, and production is decrease, cost will decrease, and production will zero, cost will zero. So it is defined as variable cost, बराबर। मीनिंग से पता चल रहा है देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड प्रोडक्शन यूनिट, बिकॉज इफ प्रोडक्शन यूनिट इंक्रीज कॉस्ट विल इंक्रीज, प्रोडक्शन यूनिट डिक्रीज कॉस्ट विल डिक्रीज, प्रोडक्शन रिमेन ज़ीरो कॉस्ट रिमेन ज़ीरो, बराबर। तो सेम प्रोपोर्शन में हो रहा है, तो दैट्स वाई वी कैन से वेरिएबल कॉस्ट एंड प्रोडक्शन यूनिट हैविंग डायरेक्ट रिलेशन, बराबर। Variable cost is also known as unstable or direct or main cost. The cost has direct relation with production. Professor Marshall has said variable cost as a main cost. प्रोफेसर मार्शल वेरिएबल कॉस्ट को मेन कॉस्ट बताते हैं, बराबर। ये हमको ध्यान रखना है। एंड फॉर एग्जांपल, वेजेस ऑफ टेम्पररी वर्कर्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रॉ मटेरियल एक्सपेंस, सेल्स टैक्स on product and transportation expenditure, these are the example of total variable cost. These are the example suggest us if production going to be increased, then such a type of cost going to be increase. If production is decreased, then such a type of cost will going to be decrease, बराबर। तो ये बात है, ओके। नाउ शेड्यूल एंड डायग्राम। एक शेड्यूल आएगा आपके स्क्रीन पे, देखिए दो अलग अलग कॉलम है, प्रोडक्शन यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीज़। प्रोडक्शन यूनिट 0, 10, 20, 30, 40, 50। वेरिएबल कॉस्ट इनटू रुपीज़, फर्स्ट 0 देन 80। अब 80 में 70 ऐड कीजिए तो हो जाएगा 150। अब 150 में 60 ऐड कीजिए तो हो जाएगा 210।
उसके बाद 80 ऐड कीजिए तो हो जाएगा 290, और लास्ट में 100 ऐड कीजिए तो हो जाएगा 390। ये ऐसी नेसेसिटी नहीं है, लेकिन एक स्लोप मेंटेन करने के लिए, वेरिएबल कॉस्ट का हम कर्व ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप मेंटेन करने के लिए हमको ये वैल्यूज़ ध्यान में लेनी है। और पूरा शेड्यूल देखेंगे तो ये प्रूवमेंट भी मिल रहा है कि भाई प्रोडक्शन यूनिट ज़ीरो रहता है तो वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो रहता है, प्रोडक्शन यूनिट इंक्रीज़ होता है तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ होता है, और प्रोडक्शन यूनिट डिक्रीज़ होता है तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज़ होता है। बराबर। आई अगेन रिपीट, ज़ीरो पहले लिखेंगे, देन 80 में 70 ऐड कीजिए तो 150, फिर 60 ऐड कीजिए तो 210, फिर 80 ऐड कीजिए तो 290, एंड लास्ट में 100 ऐड कीजिए तो 390। इस तरीके से हम याद रखेंगे। बराबर। एंड नाउ डायग्राम, एक डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिखेगा। देखिए, प्रोडक्शन यूनिट ऑन एक्स एक्सिस एंड वेरिएबल कॉस्ट इज ऑन वाई एक्सिस। अ कर्व मूव फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट 0 is suggest the TVC curve means total variable cost। बराबर। ए बी सी डी ई एफ पॉइंट भी दिए हुए हैं। ए पॉइंट सजेस्ट दैट इफ प्रोडक्शन यूनिट 0 देन कॉस्ट विल 0। बी पॉइंट सजेस्ट दैट इफ प्रोडक्शन यूनिट 10 then variable cost is 80 rupees। C point suggests that if 20 production unit then 150 rupees variable cost। Then D point suggests that 30 production unit then 210 rupees variable cost। E point suggests that 40 production unit 290 rupees variable cost। And last F point suggests that 50 production unit 390 variable cost। A line is from downward to upward from starting point 0 having positive slope suggests the variable cost curve। I mean to say a variable cost curve having positive slope, this positive slope suggests us the direct relation between production and variable cost। बराबर। Now analysis of diagram। See, as per above diagram, production unit noted on x-axis and cost is noted on y-axis, means variable cost noted on y-axis। A line will go upward side to downward side or lower side and left to right side having positive slope, noted TVC is a variable cost line। TVC line has positive slope because it moves from bottom to top from left to right side। Moreover, TVC line has positive slope from starting point 0। बराबर। यानी एनालिसिस जो है वो सजेस्ट कर रहा है कि भाई वेरिएबल कॉस्ट और प्रोडक्शन यूनिट ये दोनों के बीच में बराबर डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है, तो ये हमको ध्यान रखना है। TVC मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो स्क्रीन पर आपको जो पूरा डिटेल दिख रहा है तो वो एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट के आंसर का है, जो आपको शॉर्ट नोट में भी पूछते हैं तो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करके बराबर लिखना है। ओके। नाउ टोटल कॉस्ट। सी, an addition of fixed cost and variable cost is defined as total cost। बराबर। I again repeat, an addition of fixed cost and variable cost is defined as total cost। means total cost is equal to total fixed cost plus total variable cost। TFC plus TVC is equal to TC। TC means total cost। बराबर। तो ये टोटल कॉस्ट की डिटेल है जो हम सिर्फ यही तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं। एन एडिशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। ओके। नाउ शेड्यूल एंड डायग्राम। सी, एक शेड्यूल आएगा स्क्रीन पे, देखिए टोटल 4 कॉलम्स आएंगे। फर्स्ट प्रोडक्शन यूनिट, then fixed cost in rupees, then variable cost in rupees, then total cost in rupees।
प्रोडक्शन यूनिट 0, 10, 20, 30, 40, 50. Fixed cost remains same 100 rupees at every production unit. Then variable cost in rupees, first 0, then 80, उसमें 70 ऐड कीजिए 150, फिर उसमें 60 ऐड कीजिए 210, फिर उसमें 80 ऐड कीजिए 290 और उसमें 100 ऐड कीजिए 390. एंड लास्ट कॉलम इज टोटल कॉस्ट. एडिशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज़ टोटल कॉस्ट. यानी जो हमने फिक्स्ड कॉस्ट में वैल्यूज़ लिखी है और वेरिएबल कॉस्ट के कॉलम में वैल्यू लिखी है, ये दोनों का एडिशन करना है. तो देखिए टोटल कॉस्ट आएगा, पहले 100 + 0 तो 100, 100 + 80 तो 180, 100 + 150 तो 250, 100 + 210 तो 310, 100 + 290 तो 390 एंड 100 + 390 तो 490. तो ये शेड्यूल हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको एक प्रेजेंटेशन प्रॉपरली मिल रहा है, बिकॉज एडिशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट. बराबर. नाउ डायग्राम, एक डायग्राम आपको दिखेगा. देखिए सबसे पहले डायग्राम में देखिए प्रोडक्शन यूनिट और कॉस्ट इन रुपीज. बराबर. A line similar to x-axis TFC is total fixed cost. A line is moved forward from lower to upward, left to right, most probably from starting point 0. TVC line is suggested as the total variable cost curve, and a line TC is suggested as the total cost curve. The TC curve having also positive sloped. बराबर. यानी तीनों कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, तीनों को एक डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंटेशन करने से ये तीनों कॉस्ट के बारे में हमको प्रॉपर पता चल जाता है. बराबर. तो इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ किया जाता है. नाउ एनालिसिस ऑफ डायग्राम. सी, as per above diagram, production unit is denoted on x-axis and cost is denoted on y-axis. TFC curve is for total fixed cost. TVC curve is for total variable cost and TC curve is for total cost. बराबर. TFC is similar to x-axis, is a fixed cost line. TVC line and TC line has positive slope because it moves from bottom to top, from left to right side, but VC line has positive slope from starting point 0. बराबर. ये हमको ध्यान रखना है रिप्रेजेंटेशन में. तो टोटल कॉस्ट जो है वो बोथ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का एडिशन है. बराबर. ये दोनों का एडिशन है टोटल कॉस्ट. इस तरीके से हम डायग्राम से ये प्रूव कर सकते हैं. तो ये स्क्रीन पे आपको जो डिटेल दिख रही है वो पूरी टोटल कॉस्ट के लिए है. आप भी टोटल कॉस्ट के बारे में अगर आपको सेपरेट आंसर पूछते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हो. बराबर. ओके. नाउ एक डिफरेंस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है. डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. बराबर. सबसे पहले मीनिंग, प्रोडक्शन लेवल विल बी इंक्रीज, डिक्रीज और ज़ीरो, बट प्रोडक्शन कॉस्ट रिमेनिंग सेम, सो इट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट. Whatever the production will increase, cost will increase, and production is decrease, cost will decrease, and production will zero, cost will zero. So it is defined as variable cost. बराबर. ये मीनिंग हो गया. अदर नेम, overhead cost is the other name of fixed cost. सामने direct cost, main cost are the other name of variable cost. बराबर. Then curve, fixed cost curve is similar to x-axis and variable cost curve having positive slope. बराबर. Relation with production,
fixed cost having no relation with production, variable cost having direct relation with production. Example: rent of land or warehouse, interest of capital, salary of permanent worker, insurance premium, etc. are the example for fixed cost. Variable cost: wages of temporary workers, electricity bill, raw material expense, sales tax on product, transportation expenditure. These are the example of variable cost. And last point, average. Fixed cost divided by production unit, then it is called average fixed cost. Variable cost divided by production unit, then it is called average variable cost. बराबर? तो ये भी एक एग्जाम ओरिएंटेड आंसर है और ये भी बराबर एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं. दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिया हुआ है, फिक्स डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. बराबर. तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे. बराबर. जय श्री कृष्ण.